welcome back to Vet Vision. In this video, I want you guys to understand disturbances of body fluids, electrolytes and acid-base balance in animals. So this topic is going to be very important for all the veterinarians, field workers, laboratory workers, students and the ones who are interested in seeking knowledge for veterinary medicine. So let's start it. Disturbances of body fluids. The abnormal increase or decrease of the body fluids, their disturbances affect overall health, performance and productivity of the animals. Total body fluids, TBF. Animal's body is composed of fluids. The body fluids include water 70%, means the water percentage is 70 of the whole body, the total body weight TBW. 50% intracellular fluid is present and 20% extracellular fluid is present. Means the fluid which is present inside the cell is known as ICF, intracellular fluid, and which is present outside the cell is extracellular fluid. Interstitial fluid, ISF, compartment between the cells is present in 15%, and intravascular fluid means inside the vascular tissues or vascular layers, the IVF fluid is present inside, which quantity is 5%. Body fluids. Water helps in metabolism. Water is most important fluid in the body, which is comprises of 70% over the total weight of the body. So it helps in metabolism, means production of energy, excretion of metabolites, means expulsion of the toxic material, or waste from the body, maintenance of blood volume and pressure. Thermoregulation means the temperature maintenance, and lubrication act as buffering agent, means it changes pH of the body overall and maintains the basicity or acidity of the body, or it helps in lubrication or smooth functioning of the cells and tissues of the body. So डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर डिप्लेशन, वाटर की कमी हो जाना, वाटर की बॉडी से जो है वो डिप्लेशन या उसकी क्वांटिटी में डिक्रीज आ जाना, तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहेंगे. डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ वाटर इनटेक, मीन्स लो क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी और एंड वाटर ऑफ क्वांटिटी वाटर अमाउंट इज gradually decreased, so which results in dehydration or excessive loss of body water. Failure of water intake. There are the following reasons, means the animal is deprived of water, lack of thirst, toxemia. Due to toxemia, there is lack of thirst in animals. Inability to drink water, esophageal obstruction, मीन्स अगर इसोफेगस में अगर कोई भी चौक हो जाए या उसमें कोई इंजरी हो जाए तो वाटर की कंजम्पशन एनिमल की कम हो जाती है और वाटर वो पीता नहीं है, तो उससे भी ये फेलियर हो सकता है वाटर इनटेक का. एक्सेसिवली वाटर अगर बॉडी से लॉस हो जाए, इट कैन बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस: डायरिया, वोमिटिंग, पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन, एक्सटेंसिव स्किन वुंड्स, कॉपियस स्वेटिंग, एक्यूट कार्बोहाइड्रेट इंगॉजमेंट, acute intestinal obstruction, dilation and torsion of abomasums. Pathogenesis. So pathogenesis starts from the depression of tissue fluid levels. सबसे पहले जो टिश्यूज़ हैं उनमें फ्लूइड या जो वाटर लेवल है उनका कम होना, उसके बाद टिश्यू के मेटाबॉलिज्म से वो इंटरफेयर करेगा, उसमें प्रॉब्लमेटिक कॉज करेगा और एनर्जी की क्वांटिटी या प्रोडक्शन लॉस हो जाएगी. देन कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट का जो है वो टूटना, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस मोर वाटर, मीन्स अगर वाटर की नेचुरली बॉडी में रिक्वायरमेंट कम होगी तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या जो बॉडी में फैट्स हो गया, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो डिप्लेट होना, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी क्वांटिटी में मस्कुलर, जिसकी वजह से रीज़न में मस्कुलर वीकनेस कॉज होगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एनिमल की एपिटाइट कम हो जाएगी, एनोरेक्सिया कॉज होगा. एनहाइड्रीमिया मीन्स देयर इज़ अ लॉस ऑफ और लैक ऑफ वाटर इनटेक. हीमो कंसनट्रेशन इंक्रीजेज इन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. ओलीगेमिया रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ओलीगेमिया ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और हीमो कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर मीन्स इंक्रीजिंग इन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड.
ये ब्लड फ्लो के साथ इंटरफेयर करेगा और जिसकी वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहाँ पर ब्लड की ट्रांसपोर्ट या ब्लड की सप्लाई होती है, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी हार्ट फेलियर, तो उससे इसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। रिडक्शन इन फ्लूइड आउटपुट, एग्जांपल ड्राई फीसेस, ओलिग्यूरिया, डिक्रीज्ड स्वेट एंड रीनल इस्केमिया, एंड एट लास्ट इट रिजल्ट्स इन एसिडोसिस, मीन्स बॉडी में एसिडिटी जो है वो फुल कंपनसेट होगी, बॉडी की जो है वो नेचुरल फ्लूइड्स और एसिडिटी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लिनिकल साइंस क्या होंगे डिहाइड्रेशन की? ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई खुश्क पड़ जाएगी और उस पर रिंकल्स फॉर्मेशन होंगे। आई बॉल्स रिसीड इनटू सॉकेट्स, स्किन सबसाइड्स स्लोली आफ्टर बीइंग पिक्ड अप इनटू अ फोल्ड, मीन्स के जो एनिमल का जो CRT रेट है वो भी कम हो जाएगा और उसकी जो स्किन है वो उसको पिक करेंगे, तो पिक करने के बाद जब उसको हम रिलीज़ करेंगे तो वो स्लोली अपनी पोजीशन के अंदर जाएगी। इट मीन्स देयर इज़ सीवियर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। स्किन फोल्ड टेस्ट इज़ इम्प्लाइड टू असेस द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, इसको हम स्किन फोल्ड टेस्ट कहते हैं, जो डिहाइड्रेशन की डिग्री को असेसमेंट करने के लिए यूज़ होता है। स्किन फोल्ड, ये आपको मेमोराइज़ करना है, ये याद रखना है कि डिहाइड्रेशन को मेयर करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उसको स्किन फोल्ड टेस्ट कहते हैं। लॉस ऑफ बॉडी वेट, पॉलीडिप्सिया, स्टैगरिंग, एनिमल चक्कर खाएगा, एनिमल के नर्वस साइंस शो सकते हैं, फॉलिंग, वो गिर पड़ेगा, कन्वल्जन्स, और सीवियरिटी के केस में एनिमल की डेथ भी कॉज हो सकती है। टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, कुछ एग्जाम है इसकी। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी और जो नमकियात हैं बॉडी से वो लॉस हो जाएंगी। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम देन वाटर। फर्स्ट वाले केस के अंदर दोनों की क्वांटिटीज़ वाटर और डिजॉल्व सॉल्यूट्स की सेम रहेंगी। हाइपोटोनिक में सॉल्ट या जो सोडियम है वो ज़्यादा लॉस होगा वाटर की क्वांटिटी के बनिस्बत। एंड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर वाटर की लॉस या वाटर की जो है वो डिप्रिवेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सोडियम। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि हमें बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना है जनरली, तो वो किन थेरेपी या किन एजेंट्स के थ्रू कर सकते हैं हम? सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट आइडियल ट्रीटमेंट इज़ यूजिंग नॉर्मल सेलाइन इन एनिमल्स टू मेंटेन देयर सॉल्ट लेवल। नॉर्मल सेलाइन आपके पास जो है वो 0.9% में भी आता है, अदर इसकी जो है वो रेट में है, डोज रेट में अवेलेबल होता है। रिंगर लैक्टेट, बॉडी के अंदर सोडियम या जो उसकी परफॉर्मेंस को बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करने के लिए उसके ये इसकी ड्रिप्स जो है वो चढ़ाई जाती हैं। और सपोर्टिव थेरेपी में साथ साथ आप जो है वो कोई और मेडिकेशंस वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह के साथ आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, जिनमें आप नेचुरली बॉडी फ्लूइड्स को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ग्लूकोज का इंटेक बढ़ा सकते हैं, डेक्सट्रोज 5%, 10% ये ड्रिप्स आप चढ़वा सकते हैं। तो यूजुअली ये ट्रीटमेंट होती हैं बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए एनिमल में। सो आई होप दिस लेक्चर फाइंड्स यू इंटरेस्टिंग एंड I will come with more of the lectures, more of the topics like that, which are really important in field work and related to animal health, animal well-being, and I will also discuss their treatment protocols, their pathogenesis, their etiologies, diagnosis, and overall concerning to the animal health that includes diseases and other abnormal conditions. So let's end this lecture now, and till then, Allah Hafiz.